दोस्तों, तुर्की में महाविनाशक भूकंप आया। भारत ने मानवीय अभिगम अपनाते हुए सबसे पहले तुर्की को मदद पहुंचाने का वादा किया और वो वादा भी निभाया। तुर्की जाने का जो रास्ता था वो पाकिस्तान होके निकलता था, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, राजनीति करने लगा और अपने हवाई क्षेत्र को से गुजरने की मंजूरी नहीं दी। लेकिन हमने तो ठान ली थी कि हमें भूकंप पीड़ितों की मदद करनी है। हमने वो मदद पहुंचाई। तभी तुर्की के राष्ट्रपति ने कि भारत हमारा सच्चा मित्र है, ऐसी आपदा की घड़ी के अंदर भी भारत हमारे साथ खड़ा है। और राजनीति करते हुए पाकिस्तान ने मदद भेजना तो दूर, पाकिस्तान के वड़ा प्रधान खुद वहाँ अपना अफसरों के साथ पहुँचने के लिए तैयार हो गए। तो तुर्की ने साफ साफ मना कर दिया कि आप यहाँ पे मत आइए, हम अभी ये राष्ट्रीय आपदा के प्रबंधन में लगे हैं, लोगों को हमारी ज़रूरत है, इसीलिए आप यहाँ नहीं आइए। तुर्की एक मुस्लिम राष्ट्र है, पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, भारत एक अखंड सार्वभौमत्व है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते हैं। पर भारत ने ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, सिर्फ देखा तो मानवीय अभिगम। तो आइए इसके ऊपर भारत के लोगों का क्या सोचना है और पाकिस्तान के लोगों का भी क्या सोचना है जानते हैं। हाँ, आ बाबतમાં માત્ર એટલું જ કહેવામાં આવે કે કોઈપણ માનવીય કે કોઈપણ કુદરતી આ રીતે હોનારત થાય એ સમયે હિન્દુ મુસ્લિમ કોઈપણ ધર્મ વિશે ભૂલીને આપણે માનવતાનો હાથ વધારવો જોઈએ। તેમાં પણ કોઈપણ કન્ટ્રીને એ રીતના રાખવું જોઈએ કે આ કોઈપણ અન્ય દેશ છે કે મુસ્લિમ રાષ્ટ્ર છે તો આપણે હિન્દુ છીએ તો આપણે તેઓને મદદ ના કરવી જોઈએ કે એવું કંઈ માનવતા દાખવીને બધા લોકોને મદદ કરવી આપણો પ્રથમ ફરજ બને છે। હું હિન્દુ છું તો હું એમ ના માની શકું કે કોઈ મુસ્લિમને તકલીફ પડે છે તો હું એમને મદદ નહીં કરું એ રીતે। એના માટે ફક્ત એટલું જ કહેવાનું કે એ લોકોની મેન્ટાલિટી ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે મદદ કરવી કે ના કરવી। તુર્કી પણ એક મુસ્લિમ દેશ છે, પાકિસ્તાન પણ એક મુસ્લિમ દેશ છે, પણ આ બધું ભૂલીને માનવતાનો હાથ માનવતા દેખાડીને મદદનો હાથ આગળ વધારવો જોઈએ। પણ આ જે કામ કરેલું છે તે શોભનીય નથી દેશ કોઈ પણ દેશ માટે। તમારું નામ મને જણાવશો? આર્ય। પાકિસ્તાન એના કામો માટે તો જાણીતું જ છે કે એ કોઈનું ગણતું નથી, એનો ઇન્ડિયા તરફ એનો એટલો હેટ બી છે, બટ આ વખતે એને માણસાઈ બી નથી રાખી। આ વખતે કોઈ બીજાનું એનું પોતાનું નથી કે ભારતનું નથી, પણ તુર્કીમાં જે થયું એના માટે આપણે મદદ મોકલાઈ, એમને તો મોકલાઈ નથી પણ અમે મોકલાઈ એમાં બી એમને સપોર્ટ ના કર્યો એમનો, મતલબ આ માણસાઈ બી ના કરી એમને। અને ખાલી એક પ્લેન જવા દેવાનું હતું, એમના સુધી કંઈ માંગ્યું બી નહોતું બસ, તો બી એમને એવું ના કર્યું। બટ એવું ના કરવું જોઈએ એમને કોઈ જોડે સપોર્ટ નહીં મળે કોઈના જોડેથી બી, એટલે એવું ના કરવું જોઈએ માણસાઈના નામે। તુર્કીનું આ યોગ્ય જ હતું કેમ કે પાકિસ્તાન તુર્કી માટે ખાલી આપણે સામાન મોકલાયો હતો એ બી ના જવા દીધો, તો એ લોકો જઈને શું કરશે? એમને મદદ કરવી જ હોય તો એ લોકો જવા દેતા આપણા પ્લેનને, આપણો સામાન જવા દેતા એમની જોડે, પણ એમને સ્પેસ બી ના આપ્યો, એમનો દેશનું જે હવા હતું એ બી ના આપ્યું, તો એ જઈને શું કરશે ત્યાં? એ ખાલી પબ્લિસિટી સ્ટન્ટ માટે કરવા જાય છે, ખાલી બીજું કંઈ નથી કરવા જતા। એ સિમ્પેથી નહીં આપવાના એ લોકો। આમાં દુશ્મની અને દોસ્તનું તો કંઈ છે નહીં। પાકિસ્તાનની ઇકોનોમી અત્યારે બહુ ડાઉન છે અને એ લાગે છે કે ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનને લઈ જ લેવાનું છે પછી, તો એમાં દોસ્ત અને દુશ્મની ગમે તે હોય પણ ફાયદો તો આપણે ભારતનો થવાનો છે। પણ એવું કહી શકાય કે પાકિસ્તાન અત્યારે પણ પોતાનો માનવતા ધર્મ ના નિભાવી શક્યો। હા, એ તો અત્યારે નથી જ નિભાવતા। કરા નિરપરા એ બિઝનેસ કરીએ છીએ, ટેક્સટાઇલ ગાર્મેન્ટની મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ છીએ અમે। તો હું તો એવું કહેવા માગું છું કે આવા ટાઈમે આપણે કોઈ દેશની દુશ્મનાવટ મૂકીને આપણે માનવતા ધર્મ આપણે દાખવવો જોઈએ કે ભાઈ દુશ્મનાવટ તો સેકન્ડરી મેટર છે, ફર્સ્ટ છે કે લોકોનો જીવ છે, એનામાં જેમ જીવ છે એનામાં બીજામાં પણ એ જ જીવ છે, તો એના માટે આપણે મદદે પહોંચવા માટે એકબીજા દેશને મદદ થાય એ પહેલાં કામ કરવું જોઈએ। અને પાકિસ્તાનની આ હરકત એવું નથી કે ત્યાં બી લોકો સારા નથી, સારા લોકો છે, પણ ઘણા અસામાજિક તત્વોના લીધે આ બધી વસ્તુ થતી હોય અને એ લોકોને ઉગારતા હોય કે ભાઈ આ વસ્તુ આપણે ના કરવી જોઈએ એમ, પણ આ ટાઈમે આપણે એવું જોઈએ તો મદદ કરી હોય અને એને લોકોનો જીવ બચાવી શકત આપણે। જે અસામાજિક તત્વો છે ને, જે ગ્રુપ છે કામ કરે છે
એ લોકોનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ આમાં હોય એવું બી આપણે કહી શકીએ. હા, એ એક લેવલે આપણે કહી શકીએ જો એમણે થોડોક સાથ આપ્યો હોત તો આપણે ત્યાં મદદ પહોંચાડી શકત ને ઘણા મહદ અંશે આપણે લોકોને જીવ બચાવી શકત. આ એક સારું કામ કહેવાય અને આપણા દેશની અર્થવ્યવસ્થા માટે અને આપણા દેશના વિકાસ માટે બી આ પગલું આગળ પડતું કહેવાય. અને કોરોના કાળ સમયે કે કોઈ પણ મારામારી ટાઈમે કે કોઈ બી વસ્તુ હોય કે વૈશ્વિક કટોકટીના સમયે ભારતે બધા દેશોને મદદ કરી છે અને એ આપણી કંઈક ને કંઈક જગ્યાએ જોઈએ તો આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો બી એનો મહદ અંશે આપણે કહી શકીએ કે એના પ્રતાપે બી છે આ વસ્તુ. અને સરકારે સારા કામો કરે છે અને ભવિષ્યમાં બી કરશે એ લોકોને આપણા ભારત દેશ માટે સારી વાત છે એ કહી શકીએ. बात सुने, जब यहाँ से हम पे कोई मुश्किल हालात आते हैं, अल्लाह ना करे, ठीक है, तो जब कहीं भी कोई भी मुल्क होगा तो वो इमदाद करेगा ना। तो अगर हम बात करें अपनी, हमने जब टर्की की मदद किया तो फिर इंडिया से जब यहाँ से सिर्फ होके जाना था ना, मतलब एक एयर स्पेस बीच में रास्ते में आता ना, तो यहाँ से जाना चाहिए था। उसको चाहिए था कि हमसे पहले पता करता कि जी आपकी एयर स्पेस फ्री है या जो भी है। आप सिस्टम को तो बाईपास नहीं ना कर सकती, उसने आप एकदम तो ये सारी चीजें सही थी, ठीक है, ये सही थी, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज क्यों किया कि यहाँ से नहीं जाएगा, कहीं और से भेजे या इसको बैक कर दे। मसला कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रिफ्यूज किया कि यहाँ से नहीं जाएगा, कहीं और से भेजे। मैम अब उसका तो ये गवर्नमेंट ही बेहतर बता सकती है कि क्यों रिफ्यूज किया। पाकिस्तान जो एक इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है कि पाकिस्तान दिवाली होने के करीब है, हमने देखे पाकिस्तान अपनी हैसियत के मुताबिक ही जो है ना पाकिस्तान में चलना है। मुझे एक बात बताएगा, हम वैसे तो बहुत कहते हैं कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमारे साथ रहे, हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमें फेवर दे, लेकिन जब भी कोई इस तरह का मौका आता है, अब देखें इंडिया ने दूसरा जो हवाई जहाज है वो हमारे जरिए भिजवाना था तुर्की, ठीक है, मगर पाकिस्तान ने जो है वो सीधे तौर पर कह दिया कि हम तो ऐसा करेंगे नहीं। इसका क्या मतलब समझा जाए फिर? नहीं, ऐसा तो मेरी नजर में तो कोई ऐसा हुआ है नहीं है, ऐसा हुआ है नहीं। ये आप जो जहाँ तक मैंने देखा, और पाकिस्तान तो मुस्लिम ममालिक जितने भी ये तो सुबह की बात है। नहीं, मैंने मेरी नजर से नहीं, मैं ऐसे इस पे कोई ऐसा पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक जितने भी हैं हमारे, जितने मुस्लिम ममालिक है, जो उनकी जो कभी कोई ऐसा बुरा टाइम आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान जो है उसमें पेश अफगानिस्तान की क्या हेल्प की गई? नहीं, अफगानिस्तान की एक सिचुएशन, वो तो अभी वहाँ से एक जो अमेरिका वहाँ से निकला है, ठीक है, नहीं, इकोनॉमिकल क्राइसिस थे ना वहाँ पर, वो भी गंदम के लिए रो रहे थे पहले जब उनको इंडिया ने दी थी गंदम वगैरह, कैंप्स वगैरह। हमने अफगानिस्तान की क्या मदद की बताएं मुझे, और बांग्लादेश की हमने क्या क्राइसिस में मदद की, दूसरे इस्लामिक ममालिक की क्या मदद की गई? नहीं, ये तो टाइम टू टाइम कोई ऐसा जब वक्त आता है तो उस पर पाकिस्तान पूरी मदद करता है। अफगानिस्तान की भी की है, अभी रिसेंटली जब वहाँ पे क्राइसिस आई है तो पाकिस्तान ने स्पेशली वहाँ इमदाद भेजी है। मेंशन जैसे उनको खुराक क्राइसिस था उन पे, जैसे अभी पाकिस्तान की सिचुएशन है, उनको वहाँ बहुत सारी इमदाद भेजी गई है अफगानिस्तान को। आपको क्या लगता है उन्होंने नहीं भेजा? नहीं, वो मैंने तो नहीं उनका देखा कि उन्होंने तुर्की को भेजा होगा। आपने नहीं देखा ना, बट जो चीज हुई है हम उसी में प्रोग्राम कर रहे हैं ना। तुर्की ने इंडिया को अपना सच्चा दोस्त कहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर पाकिस्तान की जानिब से भी मदद की गई है तो फिर ऐसे अल्फाज पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं आए? हमारी मुस्लिम कंट्री है ना। नहीं, अभी देखें, अभी इस क्राइसिस में तुर्की ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? सर दी है, नहीं, मेरी नजर से तो नहीं गुजरी है तुर्की सिचुएशन में। गूगल कर ले, मैं जरूर गूगल करूंगा, लेकिन करें आप ताकि पता लगे आपको। इस सिचुएशन में तुर्की वो खुद का इतना बड़ा सान्या हुआ है और वो ऐसे वो करना शुरू कर दे कि इस तरह तो श्रीलंका भी डिफॉल्ट होने के दहाने पर था, तो श्रीलंका में भी इंडिया ने इतनी ज्यादा हेल्प की, तो उन्होंने भी कहा है कि हमें नया श्रीलंका बनाने वाला इंडिया है। क्या मतलब अगर अच्छा कोई क्राइसिस आ गए है तो आप किसी कंट्री को क्रेडिट क्यों नहीं दे सकते? क्रेडिट मैं कैसे दे सकता हूँ? हमारा इस्लामी ममालिक है, हम अपनी बात नहीं की, मैं तो उनकी बात एज अ पाकिस्तानी मैंने जितना कुछ देखा ना, कल जब भी कभी मुस्लिम ममालिक दोस्त की कोई ऐसा क्राइसिस या मुश्किल टाइम आया तो पाकिस्तान सबसे आगे और पेश रहा है जो मैंने देखा। फिर बांग्लादेश क्यों ये बात मानता नहीं, फिर सऊदीया ये बात क्यों नहीं मानता, फिर दुबई ये बात क्यों नहीं मानता? ये देखिए, उनका वो पर्सनल एक इशू है, वो माने ना माने। आपस में तो पहली बात हम लोगों में इत्तेफाक नहीं है, दूसरी बात कुछ हम अपने फाइनेंशियल हमारे क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है जिसमें हम लेट हुए हैं, लेकिन जो कि होने नहीं चाहिए थे। सबसे अवलीन फ़र्ज हमारा ही बनता है क्योंकि हम उनके भाई हैं, हम मुस्लिम हैं। वो नॉन मुस्लिम कंट्री सबसे पहले मदद करी है, तो इस वजह से उन्होंने हाईलाइट किया उनको दोस्त, जो कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है।
सर इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्री कहाँ से आ गई? देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं ना इसको। इंटरनेशनल रिलेशंस तो अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे देखिए अब इंडिया के साथ भी बहुत से ताल्लुकात खराब है, हमारे गल्फ नेशंस के साथ भी ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब है। अब है इकोनॉमी का दौर है, अब बायलैटरल ट्रेड्स का दौर है, बायलैटरल रिलेशनशिप्स का दौर है। लेकिन नहीं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं बहसियत दीन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। यानी कि मुस्लिम कंट्री है ना तुर्की भी, तो हम भी मुस्लिम कंट्री है। और सर जो जहाज हमारे जरिए पहुंचना है तुर्की इंडिया, तो उसको क्यों रोका जा रहा? क्यों क्यों इंडिया से दुश्मनी हम निकाल रहे हैं इस सिचुएशन में भी? नहीं, वो कौन रोक रहा है? तुर्की वो रोक, सवाल ये बनता है कि वो रोक कौन रहा है? हमारी हुकूमत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हुआ है सर, तुर्की इस बात का भी गिला कर रहा है। बहुत शर्म की बात है जो कि स्पेशली शहबाज शरीफ के लिए, और जो उनकी जो गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ कि इन लोगों को तो बल्कि टू बी ऑनेस्ट हुकूमत में होना ही नहीं चाहिए। जिस किस्म के आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, जो आपके सामने जो भी आप देखें, गरीब इंसान जो है, पहले अपने मुल्क का सोचें। ठीक है, वहाँ पर जो भी कुछ हुआ तुर्की में, वो बहुत बहुत अफसोस है। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी बहुत दुख हुआ कि सुना है कि अब कम से कम 10,000 से ज़्यादा जो है वहाँ पे मौत हो चुकी हैं। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे। बट टू बी ऑनेस्ट मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ जो ये शहबाज शरीफ ने जो भी किया है। कल की एक न्यूज थी, शहबाज शरीफ हमारी गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया था, इंडिया की तरफ से ना एक उनका प्लेन जा रहा था टर्की, और वहां पे अदवायात और दीगर सामान था उसके अंदर, यहाँ से एयर स्पेस चाहिए था। अब हमारी प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि यहाँ से एयर स्पेस नहीं दे, रिफ्यूज कर दिया गया और कहा कि इसको वापस भेजा जाए या किसी और रास्ते से जाए। क्या समझते हैं कि हमें टर्की की मदद करनी चाहिए, आने वाली चीजों को आगे भेजना चाहिए, हम उन्हें रिफ्यूज कर दिया, क्या गलत नहीं किया हमने? नहीं, ऑफ कोर्स बिल्कुल, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ ना, पहली आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट ने किया है इस कंडीशन में, वो सबसे पहली बात किया ही गलत है। तो अभी जो आप खुद अवाम के जो हालात देख रहे हैं, आप दूसरों की क्या मदद करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते आप। सर किस चीज की कमी है हमारे प्राइम मिनिस्टर्स में, जो कि हम इंटरनेशनल बेस देखते हैं तो ऐसा नहीं नजर आता? आई थिंक सब कुछ और हर किस्म की जो कमी है ना, वो इस गवर्नमेंट में है और किसी भी गवर्नमेंट में नहीं देखी मैंने। अब यूके से आया, मैं आपसे पूछती हूँ पहले तो वहाँ के जो ऋषि संत है वो भी इंडियन ओरिजिन के, जब वो इंडियन ओरिजिन के बने तो ये भी पाकिस्तान ने क्लेम किया कि ये इंडियन ओरिजिन के नहीं है, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं और यहाँ से ही है। क्या समझते हैं कि क्यों किया गया पाकिस्तान की जानिब से, जबकि है वो इंडियन ओरिजिन के? ये अपने मुंह से उन्होंने बात क्लेम की। देखें, वहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पर एक एजुकेशन बेस पे कोई भी आप किसी को लेते हैं ना, तो उनकी एजुकेशन देखी जाती है, बैकग्राउंड देखा जाता है। वो अगर इंडियन है तो आई थिंक वो उनकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। हमारे यहाँ जो चल रहा है वो आई थिंक ये खुद ही रन कर रहे हैं। जो इनकी जो गवर्नमेंट है, ये खुद से नहीं आया है। ये जो भी बैकग्राउंड, ये जैसा भी जो भी कुछ हुआ, ये इनकी गवर्नमेंट ये किसी दूसरे तरीके से आई है, ये नॉर्मल तरीके से नहीं आई है। छोटा सा आखिरी सवाल है सर, इंडिया पाकिस्तान अगर हम देखें तो एक ही था पहले, 1947 में जब हम अलग हुए तो दो हो गए इनके हिस्से। अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, क्या कंपैरिजन आप कर सकते हैं? अगर हम देखें तो आज वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनकी हर कोई इज्जत कर रहा है, और आज हम अगर देखें तो फॉल्ट है और उसके अलावा हमारी इज्जत कोई भी नहीं, यूएन के अंदर भी नहीं। देखिए, हमारी टू बी ऑनेस्ट इंडिया को आप कंपेयर ना ही करें तो अच्छा है, सीधी सी बात है। आप उनकी इकोनॉमी देखें ना, वो जितने स्टेबल है, हम लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। उनका वर्ल्ड वाइड, हमारे शहबाज शरीफ साहब का जो वर्ल्ड वाइड जो इंटरव्यूज चल रहे हैं, वो हर इंटरव्यूज में ये कह रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, कभी हम कहते हैं कि कुछ मांगने आए हैं या हम लोग ये करने आए हैं, वो जहाँ पे भी जाते हैं वो कशकोल फैला लेते हैं जाके। तो इस चीज़ के लिए अगर आप बोलते हैं तो मैं समझता हूँ टू बी ऑनेस्ट, अभी तक की जो गवर्नमेंट चल रही है जो इस वक्त, इनको फौरन रिजाइन करना चाहिए। जबकि हम फिर भी उनसे जंग करना चाहते हैं, इंडिया से हम जंग करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अब वो जंग करना चाहते? जंग क्या, हम तो उनको जंग में भी मुकाबला टेक्नोलॉजी लिहाज से नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये बात जो है ना, ये बात बहुत आगे तक जा सकती है, क्योंकि अभी आपने देखे जो जनरल बाजवा गए यहाँ से, वो क्या करके गए। तो अगर हम इस चीज़ पे अगर कंपेयर करते हैं तो ठीक, मैं समझता हूँ हम लोग बहुत पीछे हैं। टू बी ऑनेस्ट हम लोग बहुत पीछे हैं। आपको लगता है आने वाले सालों में हम इंडिया को बीट कर सकते हैं और अपना दुश्मन मानते हैं? नहीं, अगर तो देखें अच्छी कोई गवर्नमेंट आएगी तो आई थिंक वी कैन वर्क टुगेदर। और ये जंग जो है, ये टू बी ऑनेस्ट ना यहाँ की आवाम चाहती है ना वहाँ की आवाम चाहती है। नहीं, आ तो सकती थी, लेकिन ये है कि देखें, जज्बाती होते हैं हमारे, वो बरादर मुल्क है, तो आपके मसाए में कोई भी मिस ऐप हो तो आप फौरन वहाँ पहुँचे। सर मदद के लिए तो हमने बहुत कम मदद की है। नहीं, हम मदद के काबिल ही नहीं है, हम मदद के इस वक्त काबिल नहीं है।
हमारे वहाँ इस काबल होते तो हम जा रहे हैं ना, हमारे C-130 जा रहे हैं ना, डेली जा रहे हैं, एक एक दो दो जा रहे हैं, और जितनी हमारे बस में हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मदद कर सके। लेकिन हम मदद कर भी रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन फिर भी टर्की मुस्लिम कंट्री है ना, उसकी जानिब से हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बल्कि कल एक ऑफिशियली उन्होंने स्टेटमेंट दी कि थैंक्स फॉर इंडिया। वो ये इसको नेगेटिव ना दे आपने, उन्होंने मजबूरी के हालत में, ठीक है वो बहुत मुश्किल में इस वक्त फंसे हुए हैं, लेकिन ये हमारा फर्ज था कि हम जाके उनकी दिलाजोई कर सकते, कुछ थोड़ा बहुत हम जो हमारे से बस में था हमने किया भी है और कर भी रहे हैं। ये इसको आप नेगेटिव ना लेके जाए कि ये हुकूमत की हम इसको नेगेटिव कैसे ना लेके जाए, उनकी स्टेटमेंट हमारे हक में नहीं, हमेशा इंडिया के हक में रहती है। क्यों? ये कश्मीर के मामले में उन्होंने बरमला अपना फोरम पे, एक मोहम्मद हदा के फोरम पे उन्होंने बरमला कहा है कि कश्मीर का पाकिस्तान का हक है, और पाकिस्तान ये सारी बातें पुरानी है, अब यूएन के अंदर कोई नहीं है। सिर्फ इस मुश्किल हालात में यूएन के अंदर कश्मीर ने भी हमारा उसने चाइना ने भी हमारा साथ नहीं दिया। नहीं वो ये चाइना भी दे रहा है और तुर्की भी दे रहा है, तमाम बरादर मुल्क हमारा दे रहे हैं साथ। हम कहाँ दे रहे हैं? जो ऑफिशियल न्यूज आती है उसमें नहीं होता। ऑफिशियल न्यूज आ रही है, जो भी न्यूज आ रही है मैं भी डेली सुनता हूँ, तो ये होती है, ये दे रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारे हालात इसमें बहुत खराब हो गए। कुछ गवर्नमेंट्स पीछे लोगों ने पिछलों ने खराब किया है, कुछ इनसे संभल नहीं सका, मसला ये खराब हो रहा है इस वक्त। तो हमें ये देखना है कि हमें अपनी एक यकजान होके हमें इस मुल्क को बचाना है। जब हमारे हालात अच्छे होंगे तो हमारी सारी सुन लेंगे, सब सुन लेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की, हमारे हालात अच्छे होंगे तो सब सुनेंगे। एक छोटा सा सवाल इसी रिलेटेड, क्या आपको लगता है कि 75 सालों से अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स में अनस्टेबिलिटी हमेशा देखते हैं, कोई भी एक हुक्मरान जिसने टेन्योर पूरा किया हो और दिखाया हो कुछ करके, क्या समझते हैं? कुछ नहीं किया। मैं उस वक्त से देख रहा हूँ पॉलिटिकल को, जब अयूब खान का दौर था, ठीक है ना, मैं उस वक्त से दे रहा था। अयूब खान ने बड़ी मुखालफत की थी मोहतरमा फातिमा जना की, वो हमारी लीडर थी, हमारे कायद की बहन थी, और उससे मुखलिस बंदा और कोई नहीं हो सकता था। लेकिन ये उस वक्त से हमारे साथ मिस ऐप जो हो रहा है, ये सारी मिलिट्री करवा रही है, और मिलिट्री ने करवाया है। मैं अब ये बाजवा साहब को गालियां देते हैं, मैं डेली देखता था तो उनकी ग्राउंड में बैठ के वो चाय पीता था, है उसके बैठ के, क्या है जी, मुल्की हालात पे हम बात कर रहे हैं, मुल्की सिचुएशन पे बात कर रहे हैं, लेकिन बातें तो यही होती थी कि किसको पकड़ना किसको नहीं पकड़ना। क्या क्या किया, ये गलत किया है। जो कुछ इनसे भी हो रहा है मैं इसकी भी नहीं इतनी सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये मजबूर है, वो मजबूर नहीं था, लेकिन उसने बहुत छोटा सा आखिरी सवाल आपसे, अगर हम देखें 1947 में हम अलग हुए थे, किस बिना पे अलग हुए थे? खुद मुख्तार, आजादी और इस तरह की चीजों पे हम अलग हुए थे। अगर हम देखें तो आज हमारे पास क्या है? डिफॉल्ट होने वाले हैं। 75 सालों में आज इंडिया 5वीं बड़ी मशहद बन गया, और आज वो कहता है कि हमारी बराबरी का नहीं है पाकिस्तान, हम आज भी उससे जंग चाहते हैं। नहीं वो जंग तो इंशाल्लाह ताला वो नहीं कर सकेगा हमारे साथ, अल्लाह के फजल करम से हमें ऐसी ताकत है। आपने पीछे ज़ियाउल हक का एक बयान किया पढ़ा था ना, जब फौजें इकट्ठी हो गई थी, बॉर्डर पे आ गई थी, तो उसने राजीव गांधी को जाके कहा था कि मेरा सिर्फ एक ही बात है, ना इंडिया रहेगा, हिंदुस्तान में तो हिंदू हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू है, ये यहाँ ही खत्म हो जाएंगे, मुसलमान सारी दुनिया में है। अगर पाकिस्तान में आप खत्म भी कर देंगे, लेकिन दुनिया में से मुसलमान खत्म नहीं होंगे। मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी हमसे ज्यादा है, इतने ही है जितने इस वक्त हमारी है ना पॉपुलेशन, हमसे ज्यादा है। नहीं बस 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर भी 35 करोड़ कहते हैं। चलो वो कहते हैं ना, जो मर्जी कहें, लेकिन इतनी है। लेकिन बेचारे मुश्किल में इस वक्त फंसे हुए हैं, वो भी बड़े मुश्किल में फंसे। वो तो कहते हैं हम खुश हैं। नहीं कोई नहीं खुश नहीं है। जो आप न्यूज में देखते हैं आए दिन कश्मीर में क्या हाल हो रहा है, कश्मीर में मार रहे हैं लोगों को, आपने उनके शर्रे गन्स के लगे, उनके निशान बेचारों के, क्या क्या रोजाना 2-3 जो न्यूज बताती है, अगर मैं उस पर बात करूं तो 370 का आर्टिकल हटने के बाद कश्मीर के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुई है। उसके अलावा वहां पर जो वहां से ही प्याज आने वाला 280 रुपए किलो है, वहां पे 20 रुपए किलो है, वहां पर आटा 35 रुपए किलो है, 30 रुपए किलो है। यहाँ पर मसला ये है हमारी, देखें ये पीछे फ्लड आए हैं, कितना बुरा हालात हुए हैं, हमारी तुम्हारे फसलें तबाह हो गई हैं। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि 370 का आर्टिकल हटने के बाद इतनी डेवलपमेंट हुई है, वहां पर पहले ये सिनेरियोस थे, लेकिन अब नहीं है। ये बात है कि ठीक है हुई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी नहीं है। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी से जल्दी वहां पर ये रेशो को कम कर सके, लेकिन ये होना नहीं है। कश्मीर हमारा रहेगा इंशाल्लाह ताला, हम करेंगे, मर जाएंगे। हम 1947 से लगे हुए हैं, बल्कि उससे भी पहले लगे हुए थे, लेकिन ये होगी ना, ज्यादती होगी। और आपको क्या लगता है हमने आज तक किया क्या फिर उनके लिए? किया क्या, करना क्या था, बस ये आज जो रिजल्ट आपके सामने निकला है ये किया था। एक्चुअली इस वक्त तो शो ऑफ करने का टाइम नहीं है,
अगर मदद करनी है तो मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो बहुत सारे वे में हम उनकी मदद कर सकते हैं। एक्चुअली तो जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वहाँ पर जो इस वक्त विक्टिमाइज्ड हैं या जो इस वक्त इस डिज़ास्टर में लोग परेशान हैं, उनकी मदद की जाए, ना सिर्फ जो है वो प्रोटोकॉल और इस तरह की शो ऑफ करके इस तरह की चीज़ों को किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे और वेज हो सकते हैं कि एज ए मुस्लिम कम्युनिटी हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए मॉरली भी, और इस वक्त वहाँ पर मेडिसन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो हमें वहाँ तक उनकी रीच को ईजी करना चाहिए। फिर कल एक न्यूज आई थी, पाकिस्तान से ही पहले निकली थी, कि भाई पाकिस्तान से होकर एयर स्पेस चाहिए था, इंडिया का प्लेन जा रहा था टर्की, वहां पर उनकी मदद के लिए, तो पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया और ये कहा कि इसको रिफ्यूज किया जाए यहीं पे, या वापस भेजा जाए या कहीं और से भेजा जाए। क्या समझते हैं कि हमने सही किया? एज अ मुस्लिम की मदद करने की बजाय हमने उसके आए हुए प्लेन को रिफ्यूज कर दिया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी इस वक्त इंटरनेशनल लॉबी का हिस्सा बने बगैर हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि एक इंसानियत के नाते हम जहाँ पर जिस लेवल पे हम मदद कर सकते हैं, हमें मदद करनी चाहिए और हमें बिल्कुल देना चाहिए था, अपनी स्पेस भी देनी चाहिए थी, ताकि यहाँ से हमने कंफर्ट करना है ना, तो वो हमें बिल्कुल ये करना चाहिए था। अगर नहीं किया तो हमने गलत किया है। क्या समझते हैं, कल जहां पर हमने ये किया वहां पर इंडिया ने बहुत भरपूर बहुत ज्यादा मदद की टर्की की, इवन सबसे पहले मदद की किसी ने नहीं की थी टर्की के। वहां पर एक स्टेटमेंट जारी की गई और कहा गया थैंक्स फॉर इंडिया, आपने हमेशा से सपोर्ट किया है। क्या इस तरह से हमारी इमेज डाउन नहीं होगी जो हम खुद हरकतें करें? देखिए, हमें इसको ब्रॉडर विजन में देखना है। हम अगर इसको मेजर करेंगे एज ए ह्यूमन मेजर करेंगे, तो फिर हमें इस बात को फिल वक्त भूलना होगा कि मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी, हमें सिर्फ एज ए मुस्लिम नहीं बल्कि एज ए इंसान सोचना है। तो अगर उन्होंने हेल्प की है और चैरिटी की है या किसी भी किस्म की उनको सपोर्ट किया, तो मेरा ख्याल है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर क्या लगता है कि अगर हम अपने हालात देखें तो इस टाइम बहुत डाउन है, और अगर हम देखें तो आज भी हम इंडिया को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन दुश्मनी भी किस बना पर? वहां पर अगर हम देखें तो फिर फ्लाजर्स इकोनॉमी, और वहां पर आवाम को इतनी सहूलत है जो इधर बिल्कुल नहीं है, और यहाँ से लोग जाना चाहते हैं। क्या समझते हैं, हम इंडिया को बीट कर सकते हैं? हम किस बना पे अलग हुए थे? देखें, पहले तो हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, अपने इंटरनल इश्यूज को सेटल करना है। ये सोच है हमारे भारत की, हम मानवीय धोरण को अपनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये सिखाया जाता है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु भारत है। ये सोच पाकिस्तान की, यही अंतर जो है, एक देश आगे जा रहा है और एक देश पीछे जा रहे हैं। आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्टर होने की कगार पे खड़ा है और भारत आगे विकास कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत शोक संदेश देते हुए राहत सामग्री पहुंचाई, उसके लिए तुर्की की जनता उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी कर रही है। और विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी ने भारत का सर और आगे बढ़ा कर दिया है। धन्यवाद।